Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are going through the practical question. My dear children, question number 105 in additional question that is given. Just CBSE 2017 compartment Delhi exam. This one is the questions given, and day to day this one is being explained for the sake of you how the accounting treatment are made for the particular information given in the questions. So step by step, my dear, just you have to solve how this will be solved, the procedure and the method day to day being explained. So English to English and using bilingual in Hindi also. So question number 105, just I am going to read. Nitro Paints Limited, Nitro, one of the company Paints Limited, invited application for issuing 1,60,000 shares. Means company issue 1,60,000 shares, and equity shares of 10 each. 10 each. The face value, the price of the shares is equal to 10 rupees. 10 rupees price, and on premium 3 per share plus 3 means the rupees of 10 shares just issued by the company of 13 rupees. 10 plus 3 is equal to 13. The amount was payable as follows. On application, rupees 6 per share, including premium rupees 1. On allotment, 3 per share, including premium rupees 1. And the balance on first and final call, just including premium also. 2 रुपीज तो प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर हो जा रहा है बेटा, लेकिन जो 1 रुपए प्रीमियम हो रहा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बच रहा है। ध्यान रहे इस बात का। एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स रिसीव, एप्लीकेशन जो कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं, एप्लीकेशन 1,80,000 and 10,000 shares were rejected. 10,000 shares rejected. 10,000 rejected. Pro rata allotment was made to the remaining applicants. जो बच रहे हैं means 1,80,000 minus 10,000 is equal to 10,000 is equal to 1,70,000. Remaining applicants 1,70,000. इनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया जा रहा है, और जो ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जो ओवर पेमेंट एप्लीकेशन पर हो रहा है बेटा, were adjusted towards sums due on allotment.
उसे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट पर। ऑल कॉल्स वर मेड and were duly received except allotment and final call from Aditya, who was allotted 3,200 shares, जिसको आपने 3,200 शेयर अलॉट किया था, वह क्या कर रहा है? allotted 3,200 shares, allotted 3,200 shares. फिर to pay the allotment and final call, name Aditya. His shares were forfeited. After the calls, half of the forfeited shares were reissued for rupees 43,000 as fully paid. जो आधा शेयर है, मतलब 1,600 शेयर फिर से रीइश्यू किए जाए। अब इसकी एंट्री पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रिट्रो पेंट्स लिमिटेड। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। तो अब देखेंगे एप्लीकेशन पर कितना है। एप्लीकेशन पर है बेटा, यहीं पर लिख देते हैं। एप्लीकेशन पर आपका 6 रुपीज है, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। अलॉटमेंट पर है आपका, अलॉटमेंट पर 3 पर शेयर 1 रुपीज प्रीमियम, मतलब 2 रुपए हो गए अलॉटमेंट पर। और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा 6 3 9 4 रुपीज इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगा। बेहतर ढंग से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जो 3,200 शेयर्स अलॉट किया गया था आदित्य, एक शेयर होल्डर है, उसका आधा शेयर फिर से रीइश्यू किया जा रहा है। अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। देखें आप क्या होगा। फर्स्ट एंट्री जो होगी, ये कितना इंफॉर्मेशन है आपका। फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगा। सबसे पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर का एप्लीकेशन आपने प्राप्त किया है। Whatever the shares just the company has received, the application of the shareholders is equal to 1,80,000 and the company offering 1,60,000. So this one is the matter of over subscription. So 1,80,000 into एप्लीकेशन पर आपका 6 रुपीज है, 6। जस्ट दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई 0 0 0 0 8 इक्वल टू 10,80,000 10,80,000 आप एप्लीकेशन पर पैसा प्राप्त कर। अब आगे कहा जा रहा है कि इसे कैसे एडजस्ट करना है। 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो उन शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दिया जाएगा। और शेयर कैपिटल में हमारा कितना जाएगा, 1 रुपए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में बेटा कितना जाएगा? आपका कितने शेयर है? 1,60,000 है कंपनी के शेयर, तो 1,60,000 इंटू, अब आप देखेंगे कि एप्लीकेशन पर कंपनी ले रही है 6 रुपीज, 1 रुपया इसमें प्रीमियम का है, तो यहाँ पर इंटू 5, मतलब जो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है वह आपका 5 रुपए का होगा। तो ये हो गया 40 आपने लिख दिया ऐसे करके, 80 8 लाख रुपीज आपके शेयर कैपिटल में चले गए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका जाएगा अमाउंट 1 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,60,000 इंटू 1,60,000 टू बैंक 10,000 shares being rejected by the company to बैंक, ये वापस किया जा रहा है, तो टू बैंक 10,000 shares इंटू 6 रुपीज से दिया हम लोगों ने, तो हो गया 60,000। अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है बेटा, उसे हम किस पर एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट पर, या टू कॉल इन एडवांस भी कर सकते हैं, या शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से है? 10,000 से है, तो 10,000 1,70,000 हुआ ना, 1,80,000 से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, प्रोरेटा अलॉटमेंट 1,70,000, तो 10,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन है, 10,000 शेयर से, तो 10,000 इंटू 60,000। अब आप देखेंगे 6 ये हो गया आपकी एंट्री, सेकंड एंट्री। कितना आसान है, हाउ इजी दिस वन। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करें, अलॉटमेंट पर तीसरी एंट्री होगी, हमको जहां तक उम्मीद है ये दिख रहा है, तो आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आप देखिए अमाउंट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट पर 1,60,000 है, 1,60,000 इंटू 3 रुपए ना लग रहा है अलॉटमेंट पर, तो आपका होगा 4,80,000, 4,80,000 शेयर कैपिटल में जाएगा 2 रुपए के हिसाब से, 1,60,000 इंटू 2 हो गया 3,20,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1,60,000 इंटू 1 रुपए मांगा जा रहा है, 1,60,000। ये आपने अमाउंट ड्यू कर दिया अलॉटमेंट पर। अब एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा बेटा कि अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा मिला।
तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करें, कितना होगा? आप देखेंगे कि 1,60,000, एक वर्किंग नोट छोटा सा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1,60,000 इंटू 3 इक्वल टू 4,80,000 लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट पर आप एडवांस के रूप में 60,000 रिसीव कर चुके हैं, तो लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन आप पहले एंट्री में आपको दिखाई पड़ जाएगा माइनस 60,000 अब आ गया 0,0,0,0 4,20,000 ये हो गया। अब एक और शेयर होल्डर है जिसको 3,200 शेयर्स अलॉट किया गया था, उसने जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो भी कितना बाकी रह रहा है। तो हम सबसे पहले ये अलॉटेड शेयर है, तो जाहिर सी बात है कि इसने एप्लीकेशन अधिक शेयर का डाला होगा, तो इसका एक्सेस अमाउंट क्या हो रहा है जरा उसे पता करें, क्योंकि वो एडजस्ट हुआ होगा इस 60,000 में। तो अब सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय आदित्य, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय आदित्य, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय आदित्य इक्वल टू 1,70,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 3,200 3200। अब जरा सा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, 16 दूनी 32 200 इक्वल टू 3,400 शेयर का एप्लीकेशन डाला हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय आदित्य इक्वल टू 3,400। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि इसने एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया होगा। तो अब देखिए, मनी रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य ऑन एप्लीकेशन इक्वल टू 3,400 इंटू एप्लीकेशन पर कितना है 6 रुपीज, 6 रुपीज, तो हो गया कितना 0 0 24 को 4 8 6 18 2 20 20,400। अभी इसका एक और शॉर्ट फॉर्म का तरीका बता देंगे आप, 20,400। और इससे चाहिए कंपनी को कितना 3,200 शेयर्स इसको अलॉट किए गए हैं, 3,200 इंटू 6 0 0 6 दूनी 12 को 2 और 6 के 18 19,200 इससे कंपनी को चाहिए एक्चुअल एप्लीकेशन में। तो जो डिफरेंस अमाउंट है कितना इसने अधिक दिया हुआ है। अब यहाँ पर माइनस कर दिए 0 0 4 में से 2 गया 2 10 में से 9 गया 1 1,200 रुपीज इसने एक्सेस दिया हुआ। अब इसे चाहे तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं, जैसे 3400 शेयर का एप्लीकेशन डाला तो 3200 शेयर अलॉट किया गया, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन कितने का है 200 इंटू 6, ये एक्सेस मनी ऐसे भी निकल जाएगा। ये भी तरीका, मतलब 200 इंटू 6 12। अब एक चीज और करेंगे बेटा कि
इससे अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा चाहिए। अलॉटमेंट पर हमको इससे 3200 इंटू 3 रुपए है अलॉटमेंट पर, तो 0 0 3 दूनी 6 3 दूनी का 9,600 रुपए, और इसने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया नहीं है। एप्लीकेशन पर 1200 रुपए इसने एक्सेस दिया हुआ है, तो बकाया कितना रह जाएगा इसका। तो लेस एक्सेस मनी, लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय माइनस 1,200 0 0 4 8,400 रुपये, ये ड्यूज हो गया इसका। इतना पैसा इसने अलॉटमेंट पर नहीं दिया, तो एक 60,000 एडवांस पाए थे, उसको माइनस कर दिया अलॉटमेंट मनी में से, फिर तो बचा 4,20,000। 4,20,000 में से 8,400 भी नहीं मिल रहा है, तो इसे भी माइनस करें। 4,20,000 में से माइनस 8,400, 0 0 6 8 1 4,11,600 rupees. That is the answer given also in your book, 4,11,600. ये मेथड है। अब आप एंट्री जो करेंगे वो होगा, ये वर्किंग नोट में मिटा देना बेटा बोर्ड पर। जो एंट्री करेंगे आप वो होगा बेटा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब ये आपने निकाला हुआ है 4,11,600, और उसके बाद इसका बकाया है कितना 8,400, ये बकाया रह गया आदित्य का टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ये बन गया आपका